children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, more on Windows 10. In this chapter, you will learn about new features of Windows 10, creating a new desktop, utilities of Windows 10, working with the control panel. Microsoft Corporation has introduced its latest operating system called Windows 10. It is an ideal GI for PCs, embedded devices and tablets. It comprises of advanced and much improved features. It was released in 2015 as a follow-up to Windows 8. Like other previous versions, it is easy to work on and provides a user-friendly environment. It is equipped with more security features to safeguard against various undesirable threats. In the previous class, you have learned about some of its unique features like Cortana, the search tool, Snap Assist, the Windows Store, and a bundle of universal apps, etc. In this chapter, you will be introduced to some more innovative tools of Windows 10 that help to get things done fast. Okay, Microsoft Corporation ने इसका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, वो है विंडोज़ 10. ये एक आइडियल GUI है PCs के लिए, टैबलेट्स के लिए, एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए. इसमें आपकी एडवांस और बहुत ही इम्प्रूव फीचर्स हैं और इसको 2015 में रिलीज़ किया गया था. और प्रीवियस वर्जन्स की तरह इसमें काम करना काफ़ी आसान है और ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, इसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं. ओके, अच्छा, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक कॉर्टना के बारे में, स्नैप असिस्ट, विंडोज स्टोर के बारे में, है ना. तो इस चैप्टर में हम कुछ और इनोवेटिव टूल्स जो विंडोज़ 10 के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. देयर आर मेनी मल्टीटास्किंग tools in MS Windows 10 such as virtual desktop, task view, snap assist, custom start menu, etc. All these will assist you to be organized and focused. A new distinct features are as follows. Start menu returns. Microsoft has finally brought back the start menu which was taken back in Windows 8. Now, when you click on the start button at the bottom left of the screen, you get two panels side by side with the left column showing print and the right column showing you recently and most used apps. The power button is a new feature. It has many options such as restart, shut down, sleep and all apps. The right column features a selection of live tiles that you can customize, resize and reorganize. Not only that, but the search field at the bottom will look up related internet results in addition to programs and files. Even better, you can expand the start menu to full screen whenever you want. अच्छा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, फाइनली जो स्टार्ट मेन्यू उसने वापस ले लिया था ना विंडोज़ 8 में, उसको वापस कर दिया. ओके, अब जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ना बॉटम पे, तो आपको दो पैनल्स मिलते हैं साइड बाय साइड. लेफ्ट कॉलम में आपके पिंड आपके ऐप्स होते हैं, जबकि राइट कॉलम में आपके रिसेंटली और मोस्ट व्यूड ऐप्स होते हैं. पावर बटन एक न्यू फीचर है आपका. इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि रीस्टार्ट है, शट डाउन है, स्लीप है, ऑल ऐप्स है. राइट कॉलम में आपके क्या है फीचर है, सिलेक्शन ऑफ लाइट टाइल्स जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे whenever you want. Okay, Cortana on desktop. Microsoft has introduced Cortana in Windows 10. It is a voice-controlled digital assistant. It will help you to interact with your device without lifting a finger. For that, you need a microphone to talk. It can play music, games, set alarms and reminders, take notes, create and manage lists, and find fields information. Besides, it will help you to launch PowerPoint presentations just by telling your PC to do so. It can send email on your behalf even as you work in some other area. So it helps you in multitasking operations. माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टना लॉन्च किया, आपका इंट्रोड्यूस किया विंडोज़ 10 में. ये वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट है. ओके, ये आपके साथ जैसे डिवाइस करेगा, मतलब आपको अपनी फिंगर भी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी जिससे आप बात कर सकेंगे. ओके, म्यूज़िक, गेम, अलार्म सेट करना है, रिमाइंडर्स है, क्रिएट करना है, लिस्ट को मैनेज करना है, सब आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लॉन्च करने में भी हेल्प करता है. जस्ट आपको पीसी को बोलना पड़ता है करने के लिए. ओके, ये आपके बिहाफ पे ईमेल भी सेंड कर सकता है. ओके, और इसीलिए आपको ये मल्टीटास्किंग ऑपरेशन करने में हेल्प करता है. ओके, टू टर्न Cortana on, the steps are as follows. 1. Click on the search box on the taskbar followed by another click on the gear icon on the left side of the displayed menu. A settings menu will appear in the right pane.
2. Turn Cortana on by moving the slider to the right in the settings menu. Cortana will start gathering information about you. 3. Once activated, it becomes visible on the taskbar. 4. Convert a microphone to your computer. Give a command, hey Cortana, to activate Cortana. अब आपको Cortana को ऑन करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. So here are the steps given. सबसे पहले आप ये जो टास्क बार में सर्च बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, फॉलोड बाय अनदर क्लिक, जो गियर आइकन है. अच्छा आप देखिए सेटिंग मेन्यू आपका अपीयर हो गया राइट पैन में. ओके Cortana को अपने ऑन करना है, अपने स्लाइडर को मूव करना है सेटिंग्स की राइट में. अच्छा आप देखिए Cortana इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर करना स्टार्ट कर दिया. ओके जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये आपके टास्क बार में विजिबल हो गया. ओके नाउ माइक्रोफोन आपने कन्वर्ट करना माइक्रोफोन को टू योर कंप्यूटर. ओके अब आप वॉइस कमांड देंगे हे Cortana. ओके उसके बाद वो आपकी इससे आपका जो Cortana है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ओके फैक्ट फाइल. Windows 10 was officially released on 10th July 2015. Windows 10 को officially 10th July 2015 को रिलीज किया गया था. Learn more. Cortana is a very important feature. The next version of Windows 10 anniversary update will come with the biggest update in Cortana. Cortana काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है. जो नेक्स्ट वर्जन है ना Windows 10 का एनिवर्सरी अपडेट ये आपका आएगा Cortana के बिगेस्ट अपडेट के साथ. ओके Xbox app. You can play any Xbox game on your PC or tablet with Xbox app for Windows 10. The new operating system will support Xbox game streaming through your home network with improved speed and graphics performance. Okay, आप ना Xbox game खेल सकते हैं अपने PC या टैबलेट में किसकी हेल्प से? Xbox app for Windows 10. तो जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Xbox गेम स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है इम्प्रूव्ड स्पीड और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के साथ. Project Spartan browser. The Internet Explorer browser has been replaced by the newly announced Project Spartan. It features new note-taking feature, a new reading mode and PDF support. The note-making feature lets you scribble on any page and share your comments with your friends through social networks via a slide-in menu so you won't have to leave the browser. Okay. अब Internet Explorer browser जो है उसको replace कर दिया गया है किसके जरिए? Spartan के. ओके प्रोजेक्ट स्पार्टन के. ओके अब ये जो फीचर है इसके जो फीचर्स हैं न्यू नोट टेकिंग फीचर है, एक न्यू रीडिंग मोड एंड PDF सपोर्ट है. तो जो नोट मेकिंग फीचर है इससे आप अपने स्क्रिबल कर सकते हैं अपने पेज पे, अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्क के थ्रू वाया अ स्लाइड इन मेन्यू, जिससे कि आपको ब्राउज़र को लीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay, improved multitasking. You can run another set of windows on seemingly another screen with the help of multiple desktop feature. This feature does not need another monitor or monitors. It can help you manage your multitude of open windows and apps. Instead of having multiple windows open on top of each other on one desktop, you can set up a whole new virtual desktop for those programs to reside in. Set up one specifically for home and leave your apps such as Facebook and Netflix open and create another desktop for work on which you can keep Word, Excel and Internet Explorer open. अच्छा, आप जो है ना इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा सेट ऑफ जो विंडोज़ का है उसको रन कर सकते हैं. ओके किसकी हेल्प से? मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर की हेल्प से. इसके लिए आपको दूसरे मॉनिटर या मॉनिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. यू कैन मैनेज योर मल्टीट्यूड ऑफ ओपन विंडोज़ एंड एप्स. ओके तो मल्टीपल विंडोज़ की बजाय अब ये क्या होगा, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आप एक होल न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप को इसमें सेट कर सकते हैं. ओके सेटअप वन स्पेसिफिकली होम और उसके बाद आप अपने ऐप को लीव कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है या नेटफ्लिक्स ओपन, एंड क्रिएट कर सकते हैं दूसरा डेस्कटॉप फॉर वर्क जिसमें आप अपना वर्ड, एक्सेल एंड एक्सप्लोरर आप अपना ओपन कर सकते हैं. ओके Fact file. Windows 10 is a free upgrade for all Windows 7, 8, 8.1. The most important change is once the device has been upgraded to Windows 10, Microsoft will keep it up to date for the rest of that device life. Okay. Windows 10 आपका ना free upgrade है सभी Windows के लिए, चाहे Windows 7 हो, चाहे वो Windows 8 हो, चाहे 8.1 हो. But most important change ये है इस डिवाइस का कि एक बार अगर ये Windows 10 में अपग्रेड हो गया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसको अप टू डेट रखेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द डिवाइस लाइफ. ओके जब तक कि डिवाइस की लाइफ है. ऑफिस एप्स गेट टच सपोर्ट. अ न्यू वर्जन ऑफ ऑफिस एप्स सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक विल प्रोवाइड अ touch first interface across phones,
tablets and PCs. There is a ribbon at the top of apps. It is an app bar in itself. It will be displayed only if you want to see it. In Outlook, you will now be able to delete messages from your inbox by swiping each entry to the left. Swiping to the right flags that message. The apps will look and perform the same on the PC as they do on a mobile device. अच्छा देखिए, एक न्यू वर्जन है ऑफिस ऐप्स का, जैसे कि आपका वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट इन आउटलुक है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं टच फर्स्ट इंटरफेस अक्रॉस द फोन, टैबलेट्स एंड पीसीज. तो एक रिबन है आपका इन ऐप्स के टॉप पे. ये एक्चुअल में ऐप बार है आपका इन इटसेल्फ. ये आपको डिस्प्ले होगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आउटलुक में आप क्या कर सकते हैं, डिलीट मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं अपने इनबॉक्स को. आपको क्या इनबॉक्स में से आपने जस्ट क्या करना, आपने स्वाइप करना हर एंट्री को लेफ्ट में. ओके, जैसे आप फोन में करते हैं ना, राइट. तो फिर स्वाइपिंग टू द राइट फ्लैग्स दैट मैसेज. ओके, अब ऐप्स जो हैं वो आपको दिखेंगे, परफॉर्म करेंगे सेम तरीके से पीसी में जैसे कि आपके मोबाइल डिवाइस में करते हैं. ओके, Continuum. This feature of Windows 10 supports switching between desktop, that is a device with keyboard and mouse, and a laptop or tablet device, that is a device that take touch input. The system will detect if you have plugged in a keyboard or mouse and switch mode for more convenient interaction. It will issue a notice at the taskbar if you remove your mouse or keyboard. It will ask you whether you want to activate the tablet mode. When you do, you are greeted with more touch-friendly profile. अच्छा देखिए, ये जो फीचर है ना विंडोज़ 10 का, ये अगर आपको जैसे डेस्कटॉप के बीच में स्विच करना है तो ये इस फीचर को सपोर्ट करता है. ओके, जैसे कि एक डिवाइस है आपका कीबोर्ड और माउस के साथ, और एक लैपटॉप या टैबलेट है नहीं, जिसमें आपका टच इनपुट आपका लेता है डिवाइस. ओके, तो सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा अगर आप कीबोर्ड में प्लग्ड इन हैं या माउस या आपके जो स्विच मोड्स हैं फॉर मोर कन्वीनियंट इंटरेक्शंस के. ओके, तो ये क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा टास्क बार में अगर आप माउस या कीबोर्ड को रिमूव करते हैं. ओके, और फिर आपसे ये पूछता है कि क्या आप अपने टैबलेट मोड को एक्टिवेट रखना चाहते हैं. ओके, When you wish to use tablet mode, the steps are as follows. 1. Click on the notification icon present on the notification area of the taskbar. 2. This will open the Action Center pane on the right side of the desktop. 3. Click on the tablet mode button placed at the bottom of the Action Center pane. In tablet mode, the start menu opens in full screen along with the currently active window, if any. Further, it also maximizes all apps, removes all taskbar icons and leaves only essential notification items on the screen. The taskbar displays only the start button, back arrow, search icon and the task view button. अच्छा देखिए, अब आप टैबलेट मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन आइकन है ना आपका, इस पर हम क्लिक करेंगे. अब आपका एक्शन सेंटर पेन आपका राइट साइड में खुल जाएगा, है ना. फिर टैबलेट मोड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे. ओके, तो टैबलेट मोड में क्या होगा कि जो स्टार्ट मेन्यू है वो फुल स्क्रीन में आपका ओपन हो जाएगा अलॉन्ग विद द जो आपकी करंटली एक्टिव विंडो है अगर कोई है तो, राइट. इसके अलावा ये ऐप्स को मैक्सिमाइज करता है, टास्क बार आइकन को रिमूव करता है और फिर क्या करता है, लीव्स ओनली असेंशियल जो आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा उसी को स्क्रीन पे रखेगा. ओके, टास्क बार जो है स्टार्ट बटन को डिस्प्ले करता है, बैक एरो, सर्च आइकन और टास्क व्यू बटन को. ओके, लर्न मोड. Continuum is a new feature that was first introduced for the desktop version of Windows 10 and Microsoft is also bringing the feature of to the phone. Continuum आपका एक न्यू फीचर है जो पहले इंट्रोड्यूस गया था डेस्कटॉप वर्जन के लिए ऑफ Windows 10 एंड Microsoft ये भी आपका क्या है, इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द फीचर टू द फोन. ये जो फीचर है फ़ोन में भी वो लेकर आ रहे हैं. ठीक है. Action Center. Windows 10 will provide a new way to look at all your notifications in one place. It collects alerts from your device from all your apps, similar to the notification drawers in iOS and Android. Depending on the app, you can also respond or react from this panel itself, with each notification expanding to show more actions. There are buttons in the Action Center. They control Bluetooth, brightness, switch over to tablet mode, etc. Okay. अब देखिए इसमें विंडोज़ 10 में आपका एक न्यू वे है जिसमें आप अपने नोटिफिकेशंस को एक जगह पे देख सकते हैं. ठीक है, ये आपके अलर्ट्स को कलेक्ट करता है सारे ऐप से. ओके,
और फिर डिपेंड करता है ऐप पे, आप रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, रिएक्ट भी कर सकते हैं इस पैनल से, ठीक है। हर नोटिफिकेशन का आप एक्सपेंड कर सकते हैं टू शो मोर एक्शंस। तो बटन है आपके एक्शन सेंटर में, ये क्या करते हैं, ब्लूटूथ को कंट्रोल करते हैं, ब्राइटनेस को, एंड स्विच करते हैं ओवर टू टैबलेट मोड, ओके। Unified settings/control panel. Instead of having two apps to control your device settings in control panel and PC settings, Microsoft is making things less confusing by bringing them together in one. You will be able to manage your device from one place instead of looking for a specific menu. Okay. अच्छा देखिए, अच्छा मतलब कि दो ऐप्स को कंट्रोल करना है आपके डिवाइस सेटिंग्स में, कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग में, तो उसके बदले माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि वो इसको थोड़ा सा लेस कंफ्यूजिंग बना देता है, उनको एक में ही साथ में लेके आ जाता है, ओके। तो फिर आप अपने डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं एक प्लेस से, ओके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक मेन्यू। क्रिएटिंग अ न्यू डेस्कटॉप. You can create multiple desktops in Windows 10. This helps you organize different sets of applications. Take the following steps. 1. Click on the Task View button located on the taskbar. The Task View pane opens and displays the preview of all the open windows. 2. Click on the New Desktop button placed at the bottom right corner of the Task View pane. A new desktop thumbnail named Desktop 2 comes on the screen. 3. Click on the thumbnail to view the newly created desktop. It is a replica of Desktop 1 but does not display the applications opened in Desktop 1. You can open the apps that you want to use on this desktop. You can group the desktop windows by opening similar kind of apps in one desktop. 4. Now click on the Task View button once again to switch between various desktops. अच्छा देखिए, आप ना विंडोज में मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, इससे आप अपने जो डिफरेंट सेट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे टास्क व्यू बटन पे, ओके। अब आपका ये पेन ओपन हो चुका है, इसमें आपको प्रीव्यू, जितने भी ओपन विंडोज हैं उनकी प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं। फिर न्यू डेस्कटॉप बटन पे आपको क्लिक करना है, ओके। अब देखिए न्यू डेस्कटॉप थंबनेल जिसका नाम है डेस्कटॉप 2 ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फिर आप क्लिक करेंगे थंबनेल पे, ये डेस्कटॉप 1 की रेप्लिका है ना, बट ये एप्लीकेशंस को नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं जो आपके डेस्कटॉप 1 पे ओपनड है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐप्स को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओके। अब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे टास्क व्यू बटन पे, अगर आपको वेरियस डेस्कटॉप पे स्विच करना है तो, ओके। मूविंग एप्स बिटवीन डेस्कटॉप्स. To move an app from one desktop to another, the steps are as follows. 1. Open the task view pane by clicking on the task view button. Bring the mouse pointer over the desktop thumbnail. 2. It will display the thumbnails of all the open apps. Right click on the app that is to be moved and select Move to option. 3. A desktop list will pop up on the screen. Choose your desktop where you would like the app to be placed. अच्छा देखिए, अब आपको ना मूव करना है आपको एक डेस्कटॉप से दूसरे में, तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे टास्क व्यू पेन को ओपन करेंगे। आप क्लिक टास्क व्यू बटन पे जैसे क्लिक किया ये ओपन हो गया आपका, ओके। आप माउस पॉइंटर को हम डेस्कटॉप थंबनेल पे लेके आएंगे। अब जितने भी ओपन ऐप्स के सारे थंबनेल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर हम राइट क्लिक करेंगे ऐप पे जिसको मूव करना है, फिर सेलेक्ट करेंगे मूव टू ऑप्शन पे, ओके। अब एक डेस्कटॉप लिस्ट आपकी पॉपअप हो रही है। अब आप अपना डेस्कटॉप चूज कीजिए जहाँ पे भी आपको अपने ऐप को प्लेस करना है, ओके। क्लोजिंग अ डेस्कटॉप. To close a desktop, open the task view pane and place the mouse pointer on the desktop you want to close. Click on the close button present in the upper right corner of the desktop thumbnail to close the desktop. अब आप चाहते हैं डेस्कटॉप को क्लोज करना, तो आप क्या करेंगे, टास्क व्यू पेन को ओपन करेंगे, माउस पॉइंटर को रखेंगे डेस्कटॉप पे जैसे आप क्लोज करना चाहते हैं। फिर आपका ये जो क्लोज बटन है जो राइट कॉर्नर पे आपके अपर राइट कॉर्नर में, इसको आप क्लिक करेंगे और आपका डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा, ओके। अ क्विक मूव. यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एन एप्लीकेशन विंडो फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर. आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि एप्लीकेशन विंडो को फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर, ओके। Utilities of Windows 10. Windows 10 provide us with many utility programs for day-to-day application and entertainment. For example, Windows Media Player, Disk Cleanup, Steps Recorder, Character Map, Notepad, Shape Collector, Math Input Panel, etc. तो देखिए Windows 10 में ना बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो हमारे डे टू डे एप्लीकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, जो आपके सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। Windows Media Player. Windows Media Player runs and organizes the digital media files, both audio and video, stored in computer memory. If internet connection is available, you can listen to the radio stations from all over the world.
This software allows us to play, copy and create CDs, DVDs and copy music and video to portable devices such as mobile phones and tablets. अच्छा देखिए, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है ना, वो क्या करता है, रन करता है और ऑर्गेनाइज करता है डिजिटल मीडिया फाइल्स को, दोनों ही आपकी ऑडियो एंड वीडियो को, जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं. तो अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो आप रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. ये सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप प्ले कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं CD एंड DVDs को, म्यूज़िक वीडियो को कॉपी कर सकते हैं टू पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट्स हो गए. ओके, रिप कॉपी CD टू योर कंप्यूटर. We can copy songs from our favorite music CDs, DVDs onto our computers with Windows Media Player. When we rip music, we are actually copying songs from a CD to a computer. After copying the song successfully, we can use Windows Media Player to play and organize the songs, create playlist and copy music to a portable device. अच्छा देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सॉन्ग्स को कॉपी कर सकते हैं हमारे फेवरेट म्यूजिक CD या DVDs में ऑनटू कंप्यूटर्स, राइट. किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ मीडिया प्लेयर. तो जब हम म्यूज़िक को रिप करते हैं ना, वो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वो CD से हम सॉन्ग्स को कॉपी कर रहे हैं टू अ कंप्यूटर. ओके, कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज सॉन्ग को प्ले करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए. ओके, प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए. स्टेप्स टू रन विंडोज़ मीडिया प्लेयर आर as follows. 1. Click on the start button, select all apps, scroll down to W and click Windows Media Player from the list. 2. Insert an audio CD in the CD drive. You will see the list of songs stored on the CD in the Windows Media Player. 3. Go through the list and then uncheck the checkbox next to any song that you do not want to rip. You can use the checkbox at the top of the list either to select all or clear all checkboxes at once. 4. Click on the Rip CD button after completing the selection process. 5. The ripping process will start and you will see the rip status of individual songs. To stop the ripping process at any point, click on the Stop Rip button. 6. Click on the Rip Setting button if you need to change the format or audio quality of ripped music files. You can keep the default Windows Media format settings too. 7. The songs are ripped to the music folder contained in this PC folder. 8. After the songs have been ripped, go to the music folder to play them. चलिए, अब आपको क्या करना है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर को रन करना है. चलिए, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल एप्स एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे टू W एंड देन विल क्लिक ऑन विंडोज़ मीडिया प्लेयर. ओके, अगर आपने देखिए CD अगर इंसर्ट कर रखी है CD ड्राइव में, तो आप देखिए सॉन्ग्स जो भी आपके CD में स्टोर्ड है आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर में नज़र आ रहे हैं. ओके, हमें ये लिस्ट को हम चेक करेंगे, फिर देन एंड चेक करेंगे चेक बॉक्स को, जो भी आपको रिप करना है विच यू डू नॉट वांट टू रिप. ओके, इसके बाद आप क्लिक करेंगे रिप CD बटन, जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा. इसके बाद आपका रिपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये रिप स्टेटस आप देख सकते हैं. रिपिंग अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको ये प्रोसेस स्टॉप करना, तो आप जस्ट क्या करेंगे, स्टॉप रिप बटन पे क्लिक कर देंगे. ओके, उसके बाद रिप सेटिंग में क्लिक करना है अगर आपको फॉर्मेट या ऑडियो क्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना है. ओके, उसके बाद आपके जो सॉन्ग्स रिप हो गए हैं वो आपके जाएंगे म्यूज़िक फोल्डर में, जो आपके दिस PC फोल्डर में होंगे. ओके, और जब आपके सॉन्ग्स रिप हो जाएंगे फिर आप जा सकते हैं म्यूज़िक फोल्डर में उनको प्ले करने के लिए. ओके, important thing, we can also burn a CD using software like Nero, Express Burn etc. आप CD burn भी कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, लाइक Nero है या फिर Express Burn. ओके, कॉपिंग डेटा टू CD, बर्निंग अ CD. ओके, बर्निंग अ CD का मतलब ये नहीं होता कि CD को बर्न करना, एक्चुअल में कॉपी करना है डेटा टू CD, राइट. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड ऑन अ CD/DVD. It is as easy as saving on a hard disk. You can create your own CD/DVD by selecting a folder of software or media files and dragging it to CD/DVD icon in this PC folder. Okay, आप ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको CD या DVD में हम सेव कर सकते हैं. ये मतलब जैसे हार्ड डिस्क में सेव करना होता है उतना ही ईजी है. आप अपना खुद का CD/DVD भी क्रिएट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर या मीडिया फाइल्स एंड देन उसको ड्रैग करना है CD/DVD आइकन में, किसमें, इन दिस PC फोल्डर में. ओके, फॉलो द गिवन स्टेप. 1. Insert a blank CD in the CD drive of your computer. 2. The burn a disk dialog box comes on the screen.
mention the CD name and disc title, text box, select the option with the CD DVD player and click on next. 3. An empty disk folder opens. Here you can drag the files that you want to burn into this folder. 4. Click on the finish burning option under the manage tab. 5. Again, a burn to disk dialog box comes on the screen. Click on the next button. 6. Windows Media Player will open. Click on the start button placed under the burn tab. 7. The songs will get burned to the disk. Okay. अब आपको क्या करना है, देखिए स्टेप्स क्या हैं इसके. सबसे पहले एक सीडी, ब्लैंक सीडी जो है ना, आपको इंसर्ट करनी है अपने कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में. ओके. उसके बाद क्या होगा, बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्क्रीन पे. सीडी का नेम मेंशन करना है डिस्क टाइटल में. फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम विथ अ CD/DVD प्लेयर. देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. ओके. फिर एक एम्प्टी डिस्क फोल्डर ओपन होगा. यहाँ पे आप क्या करेंगे, फाइल को ड्रैग करेंगे जिसे आप बर्न करना चाहते हैं इस फोल्डर में. ओके. फिर क्लिक करेंगे फिनिश बर्निंग ऑप्शन. फिर अगेन एक आपके पास बर्न टू डिस्क डायलॉग बॉक्स आएगा. फिर हमने क्लिक करना है नेक्स्ट बटन. विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा. फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और आपके जो सॉन्ग्स हैं वो आपके बर्न हो जाएंगे टू द डिस्क. ओके. फैक्ट फाइल. MPEG stands for Moving Pictures Experts Group. It creates standards for digital video and compression of audio files under the auspices of the international standards. Okay. MPEG की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप. ओके. ये स्टैंडर्ड क्रिएट करती है डिजिटल वीडियो के लिए एंड कंप्रेशन ऑफ ऑडियो फाइल्स. ओके. प्लेइंग अ मूवी यूजिंग VLC मीडिया प्लेयर. VLC media player application is used to play almost all types of audio and video files. To play music using VLC, the steps are as follows. Number 1. Click on Start, All Apps, VideoLAN, VLC Media Player. The VLC Media Player window comes on the screen. It displays various commands that control VLC. 2. Select the Media tab and click on Open File. The Select One or More Files to Open dialog box comes on the screen. Select the audio video files that you want to play and click on Open button. 3. Using VLC player, we can make a playlist which may be a list of all your favorite songs or videos. To do so, click on Tools, Playlist. The playlist dialog box comes on the screen. 4. Click on the Add to Playlist button followed by Add File option. The Open dialog box comes on the screen. Browse the files and click on the Enqueue option. In this way, desired files can be added to the playlist. 5. Close the playlist dialog box after arranging the list and click on the play button. You can also rearrange or repeat the songs in the playlist by clicking on the appropriate options. देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप मूवी भी प्ले कर सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हो. उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट, फिर ऑल एप्स, VideoLAN, देन VLC मीडिया प्लेयर. ओके. अब आपका VLC मीडिया प्लेयर विंडो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी और इसमें बहुत सारी कमांड्स डिस्प्ले हो रही हैं जो VLC को कंट्रोल करते हैं. ओके. फिर आपको मीडिया टैब सेलेक्ट करना है. फिर क्लिक करेंगे ओपन फाइल. अब आपका सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स टू ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया आपका. फिर यहाँ से आप फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, ऑडियो वीडियो फाइल्स की जो भी आप प्ले करना चाहते हैं, राइट. फिर आप क्लिक करेंगे ओपन बटन पे. ओके. अच्छा, मीडिया VLC प्लेयर है ना, इसकी यूज़ करते हुए हम प्ले लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें हमारे फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, हमारी फेवरेट वीडियो हो सकती हैं. तो ऐसा कैसे करेंगे आप क्लिक करेंगे टूल्स, देन प्ले लिस्ट. अब ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया प्ले लिस्ट का. फिर हम क्लिक करेंगे ऐड टू प्ले लिस्ट बटन पे फॉलोड बाय ऐड फाइल ऑप्शन. फिर ओपन डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ गया. फाइल्स को ब्राउज करना है, देन क्लिक करना है एनक्यू ऑप्शन पे. इससे क्या होगी, जो फाइल्स है डिजायर्ड फाइल वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी. ओके. फिर प्लेलिस्ट डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है जब लिस्ट को आप अरेंज कर लेंगे एंड देन क्लिक करेंगे प्ले बटन में. ओके. आप रीअरेंज कर सकते हैं, सॉन्ग्स को रिपीट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में. जस्ट आपको क्या करना है, आपने क्लिक करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस पे. ओके. Learn more. There is a tool named Steps Recorder which helps in troubleshooting. It creates a file that contains a screenshot of every action that is performed on the system, description of the action in plain English, and the exact date and time of action which helps in solving the problem. Okay. एक tool है जिसका नाम है
नेम्ड स्टेप रिकॉर्डर जो कि आपके ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। ये फाइल को क्रिएट करता है जिसमें आपके स्क्रीनशॉट होते हैं हर एक्शन के जो परफॉर्म किए जाते हैं सिस्टम में, डिस्क्रिप्शन होता है एक्शन का प्लेन इंग्लिश में, एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम होता है एक्शन का जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। Okay, disk cleanup. With the help of disk cleanup, you can remove some unnecessary files from your hard disk to free up the disk space. To help your computer work faster, it empties the recycle bin, removes the temporary internet files, downloaded program files, offline web pages and other items that are not being used for a long time. Okay, तो disk cleanup की help से हम क्या कर सकते हैं कि जो unnecessary files है ना, हम अपने हार्ड डिस्क में जो होती हैं उन्हें हम फ्री कर सकते हैं, मतलब हमें रिमूव कर सकते हैं जिससे कि डिस्क स्पेस थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा, ये रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करेगा, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स को डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, डाउनलोडेड प्रोग्राम्स फाइल्स हो गया, ऑफलाइन पेजेस हो गया, ओके, जो कि यूज़ नहीं हो रहे लंबे टाइम से, उन्हें रिमूव करेगा। ओके, एक्टिविटी टू द स्टेप्स टू यूज द क्लीनअप फीचर ऑन द कंप्यूटर आर एज फॉलोज। 1. Click on Start, All Apps, Windows Administrative Tools, Disk Cleanup, or type Disk Cleanup in the search box and press Enter. 2. The Disk Cleanup drive selection dialog box will appear, asking you to select the drive. 3. Now click the drop down arrow and select the drive that you want to clean up. Click OK. This function will search and display the unnecessary files which can be safely deleted. 5. Select the files that you want to delete and click OK. OK, अब यह एक्टिविटी जो है आपको खुद से करनी है। आपको यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस दिया गया है, आपको क्या करना है, राइट। और जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं, मतलब जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे, देन आप उनको डिलीट कर देंगे। ओके, working with the control panel. Control panel is a system folder. It can be used to make changes in the appearance and current settings of the Windows. These may include 1. Appearance and customization of the desktop. 2. Hardware and software setup and configuration. 3. System and security. 4. Networking and internet. 5. User accounts and family safety. 6. Setting clock, language and region. These settings control nearly everything regarding Windows, appearance, internal settings and customization. Okay, ये आपका कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर होता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको चेंज करना अपीयरेंस या करंट सेटिंग्स करनी है विंडोज़ की चेंज, तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे कि डेस्कटॉप का अपीयरेंस एंड कस्टमाइजेशन हो जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, राइट। और इसके अलावा सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। तो ये जो सेटिंग कंट्रोल्स है, ये नियरली ये सेटिंग जो है ना सभी को कंट्रोल करती है, मतलब रिगार्डिंग विंडो अपीयरेंस हो या इंटरनल सेटिंग हो या फिर कस्टमाइजेशन हो। ओके, लेट्स चेक आउट कैसे करते हैं। वी कैन ओपन द कंट्रोल पैनल बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। 1. Click on the Start, then All Apps, Windows System. Select Control Panel from the displayed sublist or type Control Panel in the search box and press Enter. देखिए आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, फिर All Apps, then Windows System और सिलेक्ट करेंगे Control Panel। ओके, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो सर्च बॉक्स है इसमें हम टाइप करेंगे Control Panel एंड देन क्लिक करेंगे Enter। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग डेट एंड टाइम, दोबारा बोलती हूँ। एक्शन नेक्स्ट है चेंजिंग डेट एंड टाइम। द स्टेप्स टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम आर एज फॉलोज। 1. Click on the date and time option in control panel. The date and time dialog box appears on the screen. 2. By default, the date and time tab is selected. 3. Click on the change date and time button. The date and time settings dialog box comes on the screen. 4. To change date, select the current day in the displayed calendar. You can change the month using the forward, backward arrow buttons present on the calendar. 5. You can change time too. For this, to change the hour, select the hour in the text box located below the clock. 6. Click on the spin arrows to increase or decrease the hours as desired. Similarly, you can change the minutes and seconds. Click OK. The date and time settings of the system will change accordingly. अब आपको डेट और टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास कंट्रोल पैनल में जो ऑप्शन है ना, डेट एंड टाइम ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और फिर ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट एंड टाइम टैब है वो सिलेक्ट हो गया। ओके, अब फिर हम क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम पे और ये इसका डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स आ गया स्क्रीन पे। ओके, अच्छा, आपको डेट चेंज करनी है तो उसके लिए आप जो करंट डे आपके जो कैलेंडर पे डिस्प्ले हो रहा है ना, आपको उसको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आप मंथ को चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरोज दे रखे हैं इन पे, इनको मूव करके इस पे। ओके,
एंड देन आप टाइम चेंज कर सकते हैं. इसके लिए आपको आवर करना पड़ेगा सिलेक्ट, अगर आप आवर चेंज करना चाहते हैं जस्ट आपके क्लॉक के नीचे जो है. फिर स्पिन एरो पे क्लिक करना है जिससे कि आप आवर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. इसी तरह से मिनट्स और सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं. देन हम क्लिक करेंगे ओके, एंड जो डेट एंड टाइम सेटिंग्स है ना सिस्टम की, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हमने उसको चेंज किया. राइट. नेक्स्ट, fonts. Different styles of writing characters, text in a specific size are known as fonts. Some of the popular fonts are Arial, Calibri, Verdana, Times New Roman, etc. Font settings are used to change the display of text on the screen as well as on the paper while printing. You can view fonts, add new fonts or delete existing fonts using control panel. देखिए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग कैरेक्टर्स है टेक्स्ट आपकी स्पेसिफिक साइज में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉन्ट्स. तो बहुत सारे पॉपुलर फॉन्ट्स आपके अवेलेबल हैं. राइट. तो आप फॉन्ट्स को व्यू कर सकते हैं, कोई फॉन्ट ऐड करना हो उसे ऐड कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉन्ट है उसे आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से. ओके, तो कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट. Let us see how font can be used. 1. Click on the font option in the control panel. The fonts window appears. 2. To view the sample of a font, double click on any given font. The steps to add new fonts to the font list are as follows. 1. Double click this PC icon on the desktop. 2. Select the appropriate drive and then open the folder that contains the new fonts. 3. Select the font that you want to add and drag it to the fonts window. The new font will be added in the list of existing fonts. You can also copy and paste the desired font in the fonts window. We can delete an existing font too. For this, the steps are as follows. 1. Select the font that is to be deleted. 2. Click on the delete button located above the font thumbnails. देखिए आप कैसे फॉन्ट को यूज़ करेंगे. सबसे पहले आप जाएंगे फॉन्ट्स ऑप्शन में जो कंट्रोल पैनल पे आपके है ना. देन फॉन्ट विंडो आपकी अपीयर होगी और किसी भी फॉन्ट का सैम्पल आपको चेक करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे जस्ट गिवन फॉन्ट पे. ओके. इसके बाद आपको न्यू फॉन्ट ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो दिस पीसी आइकन है डेस्कटॉप पे, इस पर डबल क्लिक करना है. अप्रोप्रिएट ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, फिर फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें आपके न्यू फॉन्ट्स होंगे. फिर आपने फॉन्ट को सिलेक्ट किया जो आप ऐड करना चाहते हैं, फिर इसको ड्रैग करेंगे फॉन्ट विंडो तक. अब आपकी जो न्यू फॉन्ट है जिसे आप ऐड करना चाहते थे आपकी एग्जिस्टिंग फॉन्ट में ऐड हो जाएगा. ओके. इसके अलावा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डिज़ायर्ड फॉन्ट को फॉन्ट विंडो में. अगर आपको एग्जिस्टिंग फॉन्ट डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर क्लिक करेंगे डिलीट बटन पे और वो डिलीट हो जाएगा. ओके. Changing the mouse settings. We can customize the mouse settings in various ways. For example, we can change the appearance of mouse pointer and the functions of mouse buttons. We can also alter the scroll speed of the mouse wheel. Okay. आप माउस सेटिंग्स को बहुत सारे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप माउस पॉइंटर के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, माउस के बटन के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं. ओके. यहाँ तक कि जो स्क्रॉल स्पीड होती है ना माउस व्हील की, उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखते हैं. To change the mouse settings, the steps are as follows. 1. Select the mouse option in the control panel. The mouse properties dialog box comes on the screen. 2. The buttons tab is selected by default. It provides options to change the settings of mouse buttons like swapping the functionality of the left and right button, increasing or decreasing the double click speed, etc. 3. Under button configuration section, select the checkbox to make use of the right button for the primary functions like selecting and dragging. 4. You can change the speed of the double click action of the mouse. For this, drag the slider towards left to make it slow and towards right to make it fast under the double click speed section. To test the speed, double click the folder given on the right side. If the folder does not open or close, try using a slower setting. 5. You can change the appearance of your mouse pointer too. For this, click on the pointers tab. Here you can change the size, color and shape of your mouse pointers. 6. To change the pointer image, click the scheme drop-down list and choose any mouse pointer scheme. You can also change pointer images for particular functions like normal, select, busy, etc. To do so, click the pointer function in the customize section and then click on the browse button. Double click on any file name and observe the change. 7. Click on the apply button to incorporate the change, or you can click on the user default button to return to the default setting. 8. You can also adjust the speed of the mouse pointer. For this, click on the pointer options tab and drag the speed slider present in the motion section. 9. Drag the slider from slow to fast under the motion section.
10, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ओके। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं माउस की। सबसे पहले तो माउस ऑप्शन जो आपके कंट्रोल पैनल में, इसको सिलेक्ट करना है। आपके पास है माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स आ गया स्क्रीन पे। फिर बटन टैब आपका सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि जो आप माउस बटन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्वैप कर दिया फंक्शनैलिटी लेफ्ट और राइट बटन का। ओके, या फिर डबल क्लिक स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन के अंडर आपको चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है टू मेक यूज ऑफ द राइट बटन फॉर द प्राइमरी फंक्शंस। ओके, लाइक सिलेक्ट करने के लिए या ड्रैग करने के लिए। फिर आप डबल क्लिक एक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड को। आपने क्या करना है, स्लाइडर को ड्रैग करना है टुवर्ड्स लेफ्ट जिससे कि स्लो हो जाए, और राइट करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा अंडर द डबल क्लिक स्पीड सेक्शन। ओके, और स्पीड को टेस्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे फोल्डर, ये जो राइट साइड में आपको दिया गया है। अगर फोल्डर ओपन या क्लोज नहीं होता है तो फिर हम एक स्लोअर सेटिंग यूज़ करेंगे। आप माउस पॉइंटर के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये जो पॉइंटर टैब है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइज, कलर, शेप माउस पॉइंटर का चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर इमेज को चेंज करना है तो आपका ये जो स्क्रीन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे। कोई भी पॉइंटर आप स्कीम चूज कर सकते हैं। ओके, ओके, लाइक आपको ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सिलेक्ट है, बिजी है, राइट। ओके, ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, कस्टमाइज सेक्शन में आपका पॉइंटर फंक्शन है, इसको क्लिक करना है। देन आप क्लिक करेंगे ब्राउज बटन, फिर किसी भी फाइल नेम पे डबल क्लिक कीजिए और देखिए चेंजेस ऑब्जर्व आप इसमें करेंगे। फिर आपने क्लिक करना है अप्लाई बटन पे, या फिर आप यूज़र डिफ़ॉल्ट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वापस जाना है तो माउस पॉइंटर की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करेंगे पॉइंटर ऑप्शन टैब में। ओके, फिर ड्रैग करेंगे स्पीड स्लाइडर को जो आपका मोशन सेक्शन में आपका प्रेजेंट है। स्लाइडर को आप स्लो से फास्ट ड्रैग करेंगे अंडर द मोशन सेक्शन। देन आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, देन ओके। Next, replacing double click with single click. Windows has a feature that can be used to replace double click setting of a mouse with single click to open any file or program. Here are the steps that will help you to eliminate the practice of double clicking the mouse forever. Okay, Windows में पता क्या फीचर है कि आप डबल क्लिक जो सेटिंग है ना माउस की, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे किसी भी फाइल या प्रोग्राम को खोलने के लिए। तो देखिए कैसे करना है आपको। Number 1, click on the File Explorer options in the control panel. The File Explorer options dialog box comes on the screen as shown here. Turn on the single click to open an item option present under click items as follows section. 2, from the single click sub options, prefer to turn on underline icon titles only when I point at the them option. 3rd, click on apply and then click OK. Now enjoy the experience of working with single click. Remember to select any item from a list. You just have to place a mouse pointer here. There, the item would be highlighted. To open any program or document, just click on it. Okay. आप सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे। ओके, अब ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। फिर हम टर्न करेंगे सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम ऑप्शन पे। ओके, अच्छा, अब आप जाएंगे सिंगल क्लिक सब ऑप्शन से, आप जाएंगे अंडरलाइन आइकन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट देम ऑप्शन पे, फिर अप्लाई, देन ओके। अब देखिए, अब आपका सिंगल क्लिक से आपका काम होगा। कोई भी जैसे आइटम आपको सिलेक्ट करना है ना, आपको जस्ट माउस पॉइंटर वहाँ पे रखना है, वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपको उसको ओपन करना है तो आपको जस्ट एक क्लिक करना है डबल क्लिक के बजाय। ओके, Power saving modes. Sleep mode. This is a power saving state. In the state, a computer does not turn off completely while monitor and hard disk are turned off. All the open documents and applications remain in RAM and the system draws a small amount of power. It allows the computer to quickly resume full power operation when you start working again. Sleep mode is useful if you want to stop working for short time. Okay. अच्छा, ये क्या है आपका स्लीप मोड? ये आपका पावर सेविंग स्टेट है। इस स्टेट में क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं होता। कम्प्लीटली मतलब आपका बंद नहीं होगा, जबकि आपका मॉनिटर और हार्ड डिस्क ऑफ हो जाएंगे। जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशंस आपके रैम में रहेंगी, एंड सिस्टम जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को ड्रॉ करेगा। ओके, इससे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है क्विकली अपना रिज्यूम कर सकता है फुल पावर ऑपरेशन में जब आप दोबारा से काम करना चाहते हो। ओके, स्लीप मोड
जो है आपका यूजफुल है अगर आप वर्क को स्टॉप करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए. ओके, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू ब्रिंग योर कंप्यूटर टू स्लीप मोड. 1. Click on the power options and control panel. 2. Click on the change plan settings option next to the power saver radio button. 3. Choose the duration from the drop down list of the put the computer to sleep option. Click on the save changes button. Okay, इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जो पावर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है. फिर हम क्लिक करेंगे चेंज प्लान सेटिंग्स पे, जो पावर सेवर के बगल में ही होगा. फिर हमने ड्यूरेशन को चूज़ करना है, ये जो पुट द कंप्यूटर टू स्लीप ऑप्शन है ना यहाँ से, और उसके बाद सेव चेंजेस बटन पे हम क्लिक करेंगे. ओके, हाइबरनेट मोड. इन हाइबरनेट मोड अ कंप्यूटर शट्स डाउन टू सेव पावर बट फर्स्ट सेव्स ऑल द open documents and running applications in the memory on hard disk. When you restart the computer, your desktop is restored exactly as you left in. Okay, अब हाइबरनेट मोड में क्या होता है कि कंप्यूटर शट डाउन करता है पावर को सेव करने के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या करता है, जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको ये सेव करता है. एंड देन आप जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप है रीस्टोर हो जाता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने छोड़ा था. ओके, द स्टेप्स टू ब्रिंग द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड आर एज फॉलोज. 1. राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और प्रेस द विंडोज की +X. A power user menu is displayed. Select Windows PowerShell admin and click on the Yes button in the user account control dialog box. 2. On the command prompt, type the command power cfg/h on and press enter key. 3. Now tap exit and then press enter. The window will be closed. 4. Now open control panel by clicking on the start all apps Windows system control panel. 5. Click on power options. A power options dialog box comes on the screen. 6. Click on the choose what the power buttons do option located on the left side and then click on change settings that are currently unavailable option. 7. Now go through the shutdown settings, click on the hibernate checkbox and then click on the save changes tab. Now you will find hibernate option as a part of the power button in the start menu. Okay, अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो स्टार्ट बटन है ना, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, या फिर अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़ की +X. अच्छा, पावर यूज़र मेन्यू डिस्प्ले हो गया, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ पावरशेल एडमिन और फिर येस बटन पे क्लिक करेंगे यूज़र अकाउंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स में. ओके, इसके बाद आपने कमांड टाइप करनी है पावर cgf/h एंड देन प्रेस करना है एंटर की. फिर आप टाइप करेंगे एग्जिट, प्रेस करेंगे एंटर की, विंडो क्लोज हो जाएगी. ओके, अब आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है, इसके लिए स्टार्ट, देन आपका ऑल एप्स विंडो सिस्टम एंड कंट्रोल पैनल, फिर क्लिक करना है पावर ऑप्शंस में. अभी डायलॉग बॉक्स आएगा आपका स्क्रीन पे, इसमें से हम क्लिक करेंगे चूज व्हाट द पावर बटन्स डू ऑप्शन. ओके, एंड देन क्लिक करेंगे चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल ऑप्शन पे. ओके, फिर आप जाएंगे शट डाउन सेटिंग्स में, क्लिक करेंगे हाइबरनेट चेक बॉक्स में और फिर क्लिक करेंगे सेव चेंजेस टैब में. ओके, आप देखिए ये हाइबरनेट ऑप्शन जो है ये एज अ पार्ट होगा पावर बटन का स्टार्ट मेन्यू में. ओके, summary points. Windows 10 is a Microsoft operating system basically designed for personal computers, tablets and embedded devices. The new feature Continuum in Windows 10 helps the operating system work better with devices that support both a mouse and keyboard and touch input. Windows 10 supports Xbox game streaming with improved speed and graphics performance. Utilities are additional programs of Windows. Microsoft Windows Media Player runs and organizes digital media files. Ripping means copying data from a CD to a computer. Disk cleanup empties the recycle bin, removes the temporary internet files, downloaded program files, offline web pages and other items that are not being used for a long time. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.